Good afternoon, everyone. So this video is to help you for the CLAT 2025 admission counseling process. So I'll just brief you about the process here. And if you have any questions post this, you can just send it to me. Okay. So the counseling process has already started. Most of you would have received an invite when you log in into your, CLAT account at consortium website. So it is open on 4 p.m. at December 9th. And remember, the closing time and date is 20th December, 10 p.m. You cannot apply for this post this particular date and time. Okay. So you just need to make sure that whatever you're doing, you need to complete that by December 20, and don't wait for the last minute or the last day. Complete your process by 18th or 19th. Okay. Now, what all is required in the first phase of this? When you log in into your account, you will see these two things. The step one is where you have to update your NLU preferences, and once you do that, then only you will be taken to the step two, which is to make a payment. Now, if you're a general category student, the payment has to be 30,000. If you belong to any other category, then the payment is 20,000. Okay. So when you open the update NLU preferences, the page something like this opens up. Now here you can see that can you need to fill up a minimum of 15 preferences. You can go beyond that, but minimum you have to give 15 preferences. You can update your preferences any number of times until the last date, until 10 p.m. So supposedly you fill up your preferences on December 12th, and let's say you want to change it on December 15th, you can still do that, but you cannot change the preferences beyond December 20th. Okay, they have mentioned that any request for a change in preferences after 10 p.m. on December 20th will not be considered, and your candidates will be considered only for those NLUs for which they have provided preferences. Let's say if you have not mentioned DSNL Vishakhapatnam in your preference, and later on, if according to your rank, you can get that NLU. But if not mentioned earlier in the preference list, you will not be considered for DSNLU. आगे चल के भी ठीक है. And this is very important while filling up your preferences. CLAT has a system of upward movement. सो वो आपको आप मान लीजिए इनिशियली आपको रैंक्स आपने जो प्रेफरेंस रैंक्स या 6 प्रेफरेंस जो थी आपको वो अलॉट हुआ, एंड आगे चल के आपने जो 5th प्रेफरेंस दी वहां पे भी आपको सीट मिल सकती है, तो वो आपको 6 to 5 तो ले जा सकते हैं, पर वो 6 to 7 नहीं लेके जाएंगे. ठीक है, इसलिए प्रेफरेंसेस बहुत ध्यान से फिलअप करनी होती है. दे कंसोर्शियम ओनली अलाउ एन अपग्रेड or a movement up in the preference list. It does not allow a movement to in the lower preference list. Okay. So I have filled up preferences here. I think just a minute. Yeah. Yeah. These are again the same points. I have again mentioned them in the bulleted thing. Okay. Now, this is how your preference list should look like. Preference 1 should be NLS Bangalore. Okay. Preference 2 should be Hyderabad. Preference 3, Bhopal or Kolkata can interchange depending on your preferences. Preference 5 is BSc program of WBNUJS. This could be filled up only if you have like kind of science, if you're a science student. Okay. Then Jodhpur, then Gandhinagar, then MNLU Mumbai, and on 8th or 9th, you can keep HNLU Raipur, because many of you have CG domicile and would be making use of that. But still, यदि आप HNLU रायपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस रख देते हो या 8th रखते हो, यदि आपको डोमिसाइल से मिलना होगा तो दोनों केसेस में मिलेगा. क्यों हम 8th या 9th रख रहे हैं? रीजन भी, इफ एट ऑल कल को अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो वो आपके लिए एक एक ऑप्शन ओपन रहेगा.
यदि आपने एचएनएलयू रायपुर को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया एंड लेटर ऑन कुछ अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है आपके रैंक्स के बेसिस पे या वैकेंसीज के बेसिस पे, पर क्योंकि आपका रैंक वन रायपुर है, प्रेफरेंस वन रायपुर है, वो आपको मूव कंसोर्शियम मूव नहीं करेगा। एज आई सेड, कंसोर्शियम डज नॉट अलाउ यू टू गो डाउन इन द प्रेफरेंस लिस्ट। ओके, so I think we can keep HNLU at 8th and 9th, and post that you can keep Lucknow, Punjab, then Patna ka BLLB, then Patna ka BBLLB, NLIU O. So minimum 15 आपको fill करने हैं। एंड अगेन आप देखोगे बहुत सारे कॉलेजेस में बीए भी है, बीबीए भी है, वो प्रेफरेंस लिस्ट में अलग अलग लिस्टेड है। जैसे पटना में है, एनएलयू में है, रांची में बीए 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 एलएलबी है, बीबीए एलएलबी है, तिरुचिरापल्ली में भी बीए बीकॉम है, नागपुर में बीए बीबीए है। तो हर किसी को अलग अलग प्रेफरेंस आपको अलॉट करना है। मिनिमम 15 प्रेफरेंसेस देनी है। आप इसके ज्यादा भी आप चाहो तो सबको दे सकते हो। You can just do that. It's not going to hamper your chances. Remember, it's always merit come preference. It's not preference come merit. पहली चीज मेरिट देखी जाएगी, उसके बाद आप आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। ठीक है? Then once you filled up the NLE preferences, the step two is to make payment of the counseling registration fee. And this is if you belong to a general category, the fee is 30,000 rupees. This has to be paid online. They will pay. There'll be a link on the on in your CLAT account जहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन ही है, कैश चेक डीडी नहीं है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करें, उसके बाद जब पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो ट्रांजैक्शन का जो पेज है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट टू सेव एज अ रेफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लें या फोन पे एक पिक ले लें। वेट फॉर द पेमेंट टू कंप्लीट। मतलब इट्स नॉट कि पेमेंट किया और आपने पेज क्लोज किया। पेशेंटली वेट कीजिए कि पेमेंट हो जाए, आपको मैसेज आ जाए, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके अकाउंट से डेबिट हो चुका हो। ठीक है? यदि आप कैटेगरी में है एसटी, एससी, ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी, देन यू हैव टू पे 20,000 एज द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। दीज आर द टू थिंग्स जो आपको 20 दिसंबर तक करने हैं। अपने एनएलयू प्रेफरेंस को अपडेट करना है एंड काउंसलिंग फी को पे करना है। ठीक है? वेट टिल यू सी अ पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज। पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, थ्रू दी पोर्टल ही होगा। ठीक है? ये रिफंडेबल है। एंड यदि कल को आपको कोई भी एनएलयू अलॉट नहीं होता तो ये फी आपको वापस मिलेगी। ठीक है? एंड लास्ट डे अवॉइड करो। नाउ लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ द क्लास कैलेंडर हियर। ओके, सो एज आई सेड, जो एडमिशन काउंसलिंग है, जिस जो which talks about then giving NLU preferences and the giving paying the counseling registration fee, that is at 20th December. इसके बाद जो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, दैट इज कमिंग ऑन 26 दिसंबर 10 बजे। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जिन लोगों का नाम आ जाएगा, उनको 4 जनवरी तक का टाइम मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन वहां पे मेंशन करने के लिए, आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रीज एंड फ्लोट। बेस्ड ऑन दिस, जितने लोग यहाँ पे कंफर्म, अच्छा, देयर इज अ काउंसलिंग फी एंड यहाँ पे आपको कंफर्मेशन फी भी देनी होगी। ये दोनों फी लेटर ऑन आपके यूनिवर्सिटी फी में एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये एडिशनल फी नहीं है। मान लो आपके लॉ स्कूल की फीस 2 लाख है, आपने 30,000 पहले काउंसलिंग फी दे दिया, 20,000 कंफर्मेशन फी दे दिया, टोटल आपने 50,000 पे कर दिया है। तो ये आपके 2 लाख में से माइनस हो जाएंगे लेटर ऑन, जब आप मई में यूनिवर्सिटी फी देंगे। ठीक है? जितने लोग यहाँ पे कंफर्मेशन फी देंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे, फिर यदि कोई वैकेंसी अराइज होगी, फिर सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी वो 10 जनवरी को आएगी। जिनका नाम सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में आएगा, उनको अगेन कंफर्मेशन फी पे करने का एंड फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा 16 जनवरी तक। अगेन थर्ड लिस्ट आएगी आपकी 24 जनवरी को। जिनका नाम थर्ड लिस्ट में आएगा, उनको यही कंफर्मेशन फी, फ्रीज फ्लोट करने का ऑप्शन 30 जनवरी तक का टाइम मिलेगा। ठीक है? देन इसके बाद जो फोर्थ लिस्ट आएगी, वो आएगी आपकी मई में। अच्छा, जिनका नाम फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट में आ चुका है, उनको 14 मई तक
उनका बैलेंस यूनिवर्सिटी फी पे करना होगा आफ्टर एडजस्टिंग द कंफर्मेशन एंड द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, और वो कैंडिडेट जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन चूज कर लिया है। ठीक है, इनके बाद अब कोई सीट खाली होगी या कोई मूवमेंट होता है तो फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आपकी 20 मई को। अगेन सेम ऑप्शंस, इनको एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा, 4 दिन के लिए टाइम मिलेगा May 24 को। फिफ्थ एंड फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आएगी आपकी May 29, जिनको 2 जून तक का टाइम मिलेगा फी पे करने के लिए एंड फीस एंड फ्लोट कंप्लीट करने के लिए। फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनको यूनिवर्सिटी फी पे करने के लिए 10 जून तक का टाइम मिलेगा। एंड so CLAT consortium releases 5 allotment list। उसके बाद यदि किसी एनएलयू में कोई सीट वैकेंट रहती है तो वो एनएलयूज खुद अपने आप वैकेंसी नोटिफिकेशंस निकाल के फिल करते हैं। नाउ यदि आपका नाम आ चुका है इसमें, आपका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में आ जाता है तो कंफर्मेशन फी देने के साथ साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। द डॉक्यूमेंट्स आर क्लास 10th मार्कशीट, आपका CLAT 25 का एडमिट कार्ड विच इज ड्यूली साइन बाय द इन्विजिलेटर। आई होप सबने ये संभाल के रखा हो, यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए। Okay. Class 12th marks, this is going to be applicable those who are 12th passed। ठीक है, character certificate, migration certificate, again these are applicable to the students those who have completed their class 12। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपने किसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया गया है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। और मेक श्योर आप ये चेक कर लें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अभी लेटेस्ट ही बना हुआ हो, बहुत पुराना ना हो। सेम गोज विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट की ये भी अपडेटेड हो। Domicile, as I said, a lot of you would be applying through the domicile seat. So make sure your domicile certificate is ready. Okay. Any other supporting document? यदि आपने किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो वो वाला डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा। Now, allotment of NLUs, this is based on your ranks and preference. As I said, कि this is a merit cum preference का combination है ये। So, यदि आपकी रैंक 500 है तो पहले ऑलरेडी 499 को अलॉट हो जाएगा NLU, तब जाके आपकी रैंक पे आएंगे। So, पहली चीज रैंक है, रैंक के बाद फिर आपका प्रेफरेंस देखा जाता है। और यहाँ पे कंसोर्शियम जो है दैट टेक्स इनटू एवरी पॉसिबल थिंग इनटू अकाउंट, your reservations, your gender, because as good as like 13 NLUs have horizontal reservation for female candidates, your domicile, so everything is kept in the best interest by the consortium, and accordingly an NLU is being allotted। and availability is another one thing, जैसे जैसे seats fill up होती जाएंगी जो availability है वो limited होती चली जाएगी। ठीक है, and they'll start allocating from the rank 1 itself। now there are two things, I think दो terms आपने देखी थी यहाँ पे, freeze and float। freeze is when you are content with the NLU allotted। आपको जो NLU मिला है and you want to go ahead with that only, you will go with the freeze option। float, you want to keep the current allotment but at the same time you are also open to explore कि कल को यदि अपग्रेड हो सकता है, ऊपर कोई वैकेंसी होती है तो यू आर ओके विद इट, यू आर ओपन टू इट, देन यूड गो विद द फ्लोट ऑप्शन। एंड थर्ड एक ऑप्शन मिलता है एग्जिट, दैट मीन्स आप पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से आप एग्जिट ले रहे हैं। तो ये तीन ऑप्शन जब आपका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में आ जाएगा तभी आपको ये दिखेंगे। ठीक है, तब आपको फ्रीज, फ्लोट या एग्जिट में से कोई एक एक्सरसाइज करने का ऑप्शन मिलेगा। Now here we have few trends based on last year data. So you can take a screenshot, take a pause and look at what are the data here. So and also this is category wise. So you can take a look at that. Then if you look at HNLU Raipur, ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है, जो क्लोजिंग रैंक है वो 707 रैंक थी। ठीक है, SC में 6653, ST में 10917,
ठीक है, ओबीसी 1965, ठीक है। एंड ओबीसी आप देखेंगे बहुत सारे लॉ स्कूल्स में एप्लीकेबल नहीं है, ईडब्ल्यूएस भी बहुत लिमिटेड लॉ स्कूल्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड पीडब्ल्यूडी रैंक या, तो दिस इज ऑल इंडिया सीट्स के हिसाब से। दिस अनदर टेबल वेयर this table talks about first allotment domicile seats. Again, if we look at HNLU, first list 315 3143 पे फिनिश हो गया था। HNLU के लिए SC 14026, ST 32988. Okay, and these are domicile seats. These are not all India seats. OBC 9415. Okay. Now, this is the data for HNLU as per the fifth allotment list. Okay. These are the number of seats in HNLU. जनरल कैटेगरी के लिए 36 सीट है, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 27 एंड ओबीसी के लिए 12. These are the closing ranks जहाँ पे फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट जो मई एंड में आती है, ये क्लोजिंग रैंक्स थी। एंड लेटर ऑन वैकेंसीज ओपन होते हैं वंस फिफ्थ लिस्ट इज बीइंग पब्लिश्ड। वैकेंसीज में सीजी डोमिसाइल जनरल went on to till 4600 के आसपास। Okay, this is the last year data. So keep those things in mind and accordingly fill up your NLU preference, and if यदि काउंसलिंग इनवाइट आया है आपको, आप इस रैंक्स के आसपास हैं, तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्ट लीजिए। So these are the suggestive ranks. I've given you the last year accurate data. In case you have any query, you can always get in touch with me at, you know my number, but still I'm mentioning here, 98267 Fine. Thank you. I hope the process is clear. Thank you.